Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter legislature, and under this chapter we were discussing the powers of the Rajya Sabha in the previous class. And in this regard we have seen that the Rajya Sabha and Lok Sabha are having almost similar powers. There are some areas in which Lok Sabha is having more power, like the power regarding the money bill and the power regarding the exercise of control over the executive. Other than these two areas, the Rajya Sabha has similar power as the Lok Sabha. And not only this, what we find that the Rajya Sabha has some special powers also. Rajya Sabha is given by our constitution some powers which are given only to Rajya Sabha. These powers are not given to the Lok Sabha. And in this regard, we have discussed the division of power which is done through our constitution between the central and the state government, as we have adopted federalism, and under federalism there is different levels of government. So we have also gone for different levels of government, like central level per central government and then state level per state government, and there is also division of power between the center and the state. और इसमें हम लोगों ने कल we discussed about it कि 3 lists are there: union list, state list, concurrent list. On the matters of union list, the union parliament has the right to make laws. On the matters of state list, the state legislative assemblies has the right to make laws. And on the matters of concurrent list, both the union parliament and the state legislature has the power to make law. But if there is any kind of conflict, then the laws made by the union parliament will be applicable, है ना? तो ये division of power, this division of power is done by the constitution. अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारे राज्यसभा है, that is the representative of the states, है ना? लोक सभा is the representative body of the common people, and Rajya Sabha is the representative body of the states. So because Rajya Sabha is representing the states, that is why some special power is given to this Rajya Sabha, because it is Rajya Sabha is there to protect the interest of the states. Rajya Sabha is there to promote the interest of the states. What is the problem in a federalism? What we find when we discussed the chapter federalism, we have seen that there is conflict in the center-state relationship. The states wants more powers, because in our constitution the division of power is done in favor of the center, है ना? तो states जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनके powers को बढ़ाया जाए, और जो है पावर्स उसको कम तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे. तो इस कंडीशन में, इन दिस सिचुएशन, द राज्य सभा इज मेड द like a custodian. It is like a custodian of the interest of the states. ठीक है? और इसी कारण से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं जिसमें कि राज्यसभा को ही पावर दिया गया है. लाइक Rajya Sabha has the power to give the Union Parliament power to make laws on matters included in the state list. जो state list के matter है, अगर उस matter पे कौन law बनाएगा? State government will, state legislature will make laws. Now suppose what is the condition कि कुछ ऐसे situation हो रहे हैं तो उसमें ये power राज्यसभा को दिया गया है कि ये राज्यसभा जो है वो यूनियन पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का राइट दे सकती है.
ठीक है, जिस सब्जेक्ट पे लॉ बनाना था स्टेट लेजिस्लेचर को, उस पे यूनियन पार्लियामेंट लॉ बना सकती है अगर राज्यसभा ऐसा चाहती है तो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो कोई ऐसा मैटर इम्पॉर्टेंट कुछ ड्यू टू सम रीज़न इस तरह के कुछ मैटर्स हो सकते हैं जिसको कि यूनियन पार्लियामेंट जो है वो चाहती है कि उस मैटर को स्टेट लिस्ट से हटा दिया जाए, ठीक है। स्टेट लिस्ट से उस मैटर को हटा करके कहाँ ले आया जाए, या तो यूनियन लिस्ट में या फिर कंकरेंट लिस्ट, ओके। स्टेट यूनियन पार्लियामेंट जो है वो ये चाहती है कि किसी मैटर को स्टेट लिस्ट में है जो मैटर, उसको वहां से हटा करके या तो यूनियन लिस्ट में ले आए या कंकरेंट लिस्ट में ले आए। तो यूनियन पार्लियामेंट जो है वो इस तरह का काम तभी करेगी जबकि उसको राज्यसभा का अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। राज्यसभा के अप्रूवल के बिना ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उसको वहां से रिमूव करके सेंटर या कंकरेंट यूनियन या कंकरेंट लिस्ट में डाला जा रहा है। सो इन दिस प्रोसेस व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द कंसिक्वेंस ऑफ दिस मूव। कंसिक्वेंस यही होगा कि स्टेट के पावर कम हो जाएंगे, क्योंकि स्टेट लिस्ट में जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम होंगे उसके पावर उतने कम होंगे, है ना। तो ये this move is directly affecting the powers of the states. So as the Rajya Sabha is considered to be the representative of the states, that is why the approval of Rajya Sabha is compulsory. Without approval of Rajya Sabha, this cannot be done. Okay? But here one more thing which you must know, that what we find, what our experience has shown in the for the last 70 years we are experiencing all these things, and what we have experienced that the Rajya Sabha is not a body which acts according to the interest of the states. It is not there actually. Actually, what we find in practice, that Rajya Sabha is not there to represent the states. They are representing their parties only. ये जो चीज़ है ये हम देख रहे हैं, वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस, कि राज्यसभा जिसको कि बनाया गया था फॉर दिस पर्पस कि इट विल बी द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द स्टेट्स, इट विल प्रोटेक्ट the interest of the states, it will promote the interest of the states, but it is not happening. Actually, Rajya Sabha is simply representing their parties, and जो भी voting होती है, whatever voting is done in the Rajya Sabha, that is done according to the their respective political parties. उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो बिहेव करते हैं. इन दिस रिगार्ड यू मस्ट रिमेंबर द रेफरेंस विच इज गिवन टू यू रिगार्डिंग द जर्मन लेजिस्लेचर. हमने जर्मन लेजिस्लेचर के बारे में देखा था. उसमें क्या था, जो स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी वो ब्लॉक की तरह बिहेव करते थे, एक यूनिट की तरह बिहेव करते थे, और उनको जो स्टेट थी वो बताती थी कि क्या करना है, किसी मुद्दे पर, किसी इशू पर यस सपोर्ट करना है या उसके अगेंस्ट जाना. और सारे के सारे मेंबर जो एक स्टेट से आ रहे हैं वो एक यूनिट की तरह, एक ब्लॉक की तरह बिहेव करते. दैट इज ट्रू रिप्रेजेंटेशन. अगर हम स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो वैसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जिसमें कि the 31 members from UP will behave like a block. अगर कोई मैटर ऐसा आ रहा है जिससे कि स्टेट्स के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है, if some matter is there which is harming the interest of the states, then all the members like UP के जो 31 members है, they will behave like a block. They all will oppose that proposal. और उससे क्या होगा कि वो बिल पास नहीं हो पाएगा. तो दैट इज ट्रू रिप्रेजेंटेशन जो कि हमने जर्मनी में देखा, बट इन आवर कंट्री it is lacking. The Rajya Sabha is also functioning on the lines of
पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके होते हैं उनके हिसाब से ही वो काम करते हैं, वहाँ पर भी पार्टी पॉलिटिक्स ही चलती है. स्टेट इज नॉट देयर इन द माइंड ऑफ द members of the Council of States or Rajya Sabha. And this is the condition. So these are the special power of Rajya Sabha. Other than this, now if we consider the powers of the Lok Sabha, completely similar. जो हमने power and function of the parliament देखा, then power of the Rajya Sabha देखा, power of the लोक सभा को भी देखेंगे तो हर मामले में सिमिलर पावर दिए गए हैं लोकसभा को. बस एक ही मैटर है, और वो कौन सा मैटर है? दो मैटर है. वन इज रिगार्डिंग मनी बिल. मनी बिल जो है वो दैट कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन द लोकसभा, है ना. सो अगर हमें लाइक स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा है तो वो तो हमने देख लिया कि स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग जो मैटर्स होते हैं उसमें राज्यसभा को स्पेशल पावर दिया गया. और क्यों दिया गया? बिकॉज स्टेट राज्यसभा इज कंसिडर्ड टू बी द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द स्टेट्स, है ना. अब हम देखेंगे स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा. लोकसभा के स्पेशल पावर लोकसभा के क्या है? When we say special power, it means कि those power which are given only to Lok Sabha, not to Rajya Sabha. In the similar way, जब हम कहते हैं कि राज्य सभा के special power, those powers which are given only to राज्य सभा, not to लोक सभा. Okay, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं special powers of लोक सभा. इसमें हम क्या देखेंगे? जो special power है that is regarding मनी बिल. ठीक है, मनी बिल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और इट कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन द लोकसभा. और एक बार लोकसभा से जब पास होकर वो राज्यसभा में जाएगी तो राज्यसभा कैन ओनली डिले इट फॉर 14 days. अदर देन दैट राज्यसभा हैज नो पावर रिगार्डिंग मनी बिल. इसी तरह से अगर हम दूसरा जो एक मैटर है जहाँ पर देखते हैं कि राज्यसभा से ज़्यादा पावर लोकसभा को दी गई है, वो है जो हमारी मिनिस्ट्री है दैट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा. Collective responsibility of the Council of Ministers is towards the लोकसभा. ठीक है, तो इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि द होल मिनिस्ट्री is collectively responsible towards the Lok Sabha, and that is the reason कि if the Lok Sabha passes a vote of no confidence, then in that situation the ministry will no longer exist. पूरी की पूरी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो गिर जाती है. गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर और को रिजाइन करना पड़ता है, पूरी मिनिस्ट्री खत्म हो जाती है अगर लोकसभा जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर देती है. तो और ये दो ही चीजें हैं जिसमें कि हमने लोकसभा को ज्यादा पावर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड देयर इज रीजन बिहाइंड इट व्हाई द लोकसभा इज गिवन मोर पावर रिगार्डिंग मनी बिल, व्हाई द राज्यसभा इज गिवन, व्हाई द लोकसभा इज गिवन मोर पावर रिगार्डिंग मनी बिल, व्हाई द लोकसभा इज गिवन मोर पावर रिगार्डिंग एक्सरसाइजिंग द कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. Because Lok Sabha is the directly elected body, it is the representative body of the common people. जो आम जनता है उसको ये represent करता है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इसका फॉर्मेशन होता है. तो दैट इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल. और अगर हम पैसे की बात देखते हैं, मनी बिल को देखते हैं, तो मनी बिल में क्या है, मनी रिलेटेड मैटर्स हैं.
और गवर्नमेंट के जो भी इनकम होती है उसका एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो हम जो टैक्स देते हैं, द कॉमन पीपल, द टैक्स पेयर्स। तो पैसा जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, वॉट एवर गवर्नमेंट की तरफ से जो जो चीज़ें मनी का हो रहा है, वो हमारा पैसा है ना, कॉमन पीपल का पैसा है, जनता का पैसा है। तो कंट्रोल भी किसका होना चाहिए? जनता का होना चाहिए। पैसा जिसका, कंट्रोल उसका। पैसा आम जनता का, तो कंट्रोल आम जनता का। वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट डायरेक्टली, वी आर कंट्रोलिंग इट थ्रू आर रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर देयर इन द लोकसभा, है ना। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा है, वो हमारे पैसे पे कंट्रोल करेंगे कि वो पैसा मिसयूज नहीं होना चाहिए और कहीं गलत मुद्दे पर खर्च नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट पर ये कंट्रोल। ठीक है, तो मनी बिल में इसलिए लोकसभा को ज्यादा पावर दिया गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दैट इज टुवर्ड ओनली टुवर्ड्स द लोकसभा, नॉट टुवर्ड्स द राज्यसभा। तो राज्यसभा को ये पावर भी नहीं दिया गया है कि राज्यसभा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करके सरकार को गिरा दे। नो, इट कैन नॉट रिमूव द गवर्नमेंट, इट कैन नॉट रिमूव द गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो हमारी गवर्नमेंट बनती है वो पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। पीपल हैज गिवन देयर मैंडेट टू दैट पर्टिकुलर पार्टी और कोalition और अलायंस टू रूल ओवर देम। तो जो जनता ने जिसको आदेश दिया है, उस आदेश को राज्यसभा, जो कि एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, दैट कैन नॉट रिमूव दैट गवर्नमेंट। अगर उसको रिमूव करने का पावर किसी के पास है तो वो उसी के पास है जिसको जनता ने इलेक्ट किया है, दैट इज लोकसभा। ठीक है, तो चीजें अगर हम इस तरह से समझ सकेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आखिर क्यों ऐसा होता है। जब हम क्यों समझ लेंगे तो क्या होता है वो अपने आप हमें याद हो जाएगा। वी डोंट नीड टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स विल बी ऑलवेज देयर इन आवर माइंड, है ना। तो यही है जो कि हमने देखा कि क्या पावर एंड फंक्शन है पार्लियामेंट का, देन क्या पावर एंड फंक्शन है राज्यसभा का, देन इसी के अंदर हमने स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा देखा, एंड देन क्या पावर एंड फंक्शन है लोकसभा का, और इसमें भी हमने देखा कि इसके क्या वो है स्पेशल पावर्स है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और वो है लॉ मेकिंग प्रोसेस जो होती है पार्लियामेंट की, उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे कि किस तरह से लॉ जो है वो बनता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। ओके, लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट। हमारे पार्लियामेंट का जो चीफ फंक्शन है दैट इज लॉ मेकिंग, और उस लॉ को बनाने के लिए पार्लियामेंट कौन सा प्रोसेस फॉलो करती है। ओके, सो व्हाट वी फाइंड दैट इन आवर पार्लियामेंट a definite procedure is followed in order to make the laws। एक एकदम डेफिनेट प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, एंड व्हाट वी फाइंड कि सम ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ लॉ मेकिंग आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मेंशन कर दिया गया है और उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं, बट एट द सेम टाइम वी सी दैट सम प्रोसीजर्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम कन्वेंशंस। हमने कन्वेंशन, आई टोल्ड यू व्हाट इज कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है? कोई रिटन लॉ नहीं है, ठीक है, रिटन रूल नहीं है इसके रिगार्डिंग, ये एक प्रैक्टिस बन जाती है जिसको हम हिंदी में कहते हैं फॉर द एग्जैक्ट टर्म फॉर कन्वेंशन इन हिंदी इज अभिसमय। अभिसमय भी यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे एक चलन हो गया है ना, एक प्रैक्टिस हो गई, एक रिवाज हो गया कि ये चीजें ऐसी ही होती हैं, दो इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टिल द पार्लियामेंटेरियन फॉलो द
द सेम प्रोसेस, वो एक अनरिटन रूल होता है. और व्हेन वी वर डिस्कसिंग कॉन्स्टिट्यूशन, आई टोल्ड यू कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें मोस्ट ऑफ दी जो रूल्स हैं वो ऐसे ही अभी समय जिनको हम कन्वेंशन कह रहे हैं, इन्हीं कन्वेंशंस पे वो चलती हैं. रिटर्न कुछ भी नहीं है. तो ये कन्वेंशंस में बहुत पावर होती है. इट्स नॉट कि रिटर्न नहीं है तो इसको कोई भी बदल सकता है, ऐसा नहीं होता है. ये जो एक चलन जो एक बन जाती है वो एक तरह का अनरिटन रूल है जो कि हर जो भी गवर्नमेंट आती है वो उसको फॉलो करती है. अगर वो नहीं फॉलो करे तो फिर एक माहौल बन जाता है, एक पब्लिक ओपिनियन जो है वो फॉर्म होने लगती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट. तो इसलिए जो भी ऐसा नहीं है कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर के सारी जो प्रोसेस है ऑल आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सम आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सम आर इवॉल्व थ्रू दिस कन्वेंशंस. ओके, सो व्हाट वी फाइंड कि ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है ये बहुत ही मतलब टेक्निकल होता है ना. इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल फॉलो करनी ज़रूरी होती है और साथ ही साथ ये बहुत टीडियस भी हो जाता है. टीडियस कहने का मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है. ओके, तो ये हमारी लॉ मेकिंग प्रोसेस की वी हैव स्टार्टेड द डिस्कशन एंड नाउ वी विल सी द कैटेगराइजेशन ऑफ बिल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड कि लॉ जो बनता है ना, जब लॉ एक बनने का प्रोसेस हो रहा है, इसमें जब लॉ बन जाता है तब हम उसको एक्ट कहते हैं, है ना. व्हेन अ लॉ इज पास्ड, व्हेन अ बिल, नॉट लॉ, व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट, देन इट बिकम्स एन एक्ट. तब ये एक्ट बन गया जिसको कि हम लॉ कहते हैं, है ना. हमारे लॉ ऑफ द लैंड वो बन गया. और ये इसके पहले एक्ट कब बन रहा है, उसके पहले ये क्या होता है, उसके पहले उसको हम कहते हैं बिल. ठीक है, बिल जो होता है, बिल ही एक्ट बन जाता है. कब बिल एक्ट बन जाता है, जबकि उस बिल को दोनों हाउस पास कर देती है और प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देते हैं. अब ये बिल क्या होता है, व्हाट इज बिल. बिल जो है वो इट्स अ ड्राफ्ट, है ना, ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ. जो भी लॉ बनने जा रहा है, ठीक है, जो भी एक्ट लॉ हमारे दिमाग में है कि हमें ऐसा ये लॉ चाहिए, लाइक कोई लॉ डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कोई लॉ बनने जा रहा है, ठीक है. तो अब उसकी क्या होगी, एक ड्राफ्टिंग होगी ना, कि उस लॉ के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, रिटन फॉर्म में लिखा जाएगा ना, वही उसी पर बातें होंगी, उसी पर डिस्कशन होगा कि ये हमारा लॉ है, प्रपोज्ड लॉ है ना. रिटन फॉर्म में उसको लिख दिया जाता है प्रपोज्ड लॉ के की जो ड्राफ्टिंग हुई, है ना. तो बिल क्या है, अ बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ. इट इज माई पर्सनल ओपिनियन दैट ये जो छोटी छोटी टर्म्स होते हैं ना, इनका मीनिंग यू मस्ट नो. इफ यू आर नॉट नोइंग द मीनिंग ऑफ बिल, तो क्या होगा ना, ये पूरा जो स्टोरी है लॉ मेकिंग का, इट विल बिकम अ काइंड ऑफ मिस्ट्री फॉर यू. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड. जो भी वर्ड हम पढ़ रहे हैं बुक में, जो भी वर्ड आपको डिस्कशन के दौरान सुन रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. क्योंकि अगर चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो फिर क्या होता है, वो पाइल्ड अप होता जाता है. आपका जो कंफ्यूजन है, इट गेट्स पाइल्ड अप और फिर लास्ट में हम गिव अप कर देते हैं. तो डोंट गिव अप, जस्ट गो फॉर मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड. ये बिल बहुत ही छोटा सा वर्ड है, बट it causes a lot of confusion in our mind. Even I can understand these problems because we also faced the same kind of situation when we were students, है ना. तो ये इट इज माई एडवाइस कि इन चीज़ों को लाइटली मत लो. जहाँ पर भी जो भी वर्ड नया आता है उसको समझने की कोशिश पूरी होनी चाहिए. बिल
बिल जो कि हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया प्रपोज्ड लॉ का, उसको हम बिल कहते हैं। और ये जो बिल होती है उसी पर डिस्कशंस होते हैं दोनों हाउसेस में, और फिर वही बिल जो है जब दोनों हाउस से पास होके प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिल जाती है तो वो लॉ बन जाता है, जिसको कि हम एक्ट कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स और टाइप्स ऑफ बिल्स। बिल्स कितने तरह के होते हैं? अगर हम देखें तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स हो रहा है वो दो बेसिस पे होता है। एक तो मनी बिल और नॉन मनी बिल, विच वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ, कि मनी बिल वो होते हैं जिसमें मनी मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं, और नॉन मनी बिल कौन से हुए? जो ऑर्डिनरी बिल है, जिनमें कोई भी मनी से रिलेटेड मैटर नहीं है, और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल है वो भी नॉन मनी बिल में ही आता है। तो ठीक है, इसको हम लोग वी कैन ड्रॉ इट, एक हम लोग इसको फ्लो चार्ट की तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, so this is bill. Bill is of two types. One is money bill and another is non-money bill. अब इस नॉन मनी बिल में दो तरह के बिल आते हैं, ऑर्डिनरी बिल एंड द सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ओके, तो ये दो तरह के बिल होते हैं। अदर देन दिस डिवीजन ऑफ बिल, देयर इज another division of bill also. This is division according to the money matter, है ना। दूसरा जो डिवीजन हो रहा है वो इस बेसिस पे हो रहा है कि उस बिल को इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है, हु इज द पर्सन who is introducing the bill. According to that, on that basis, the bill is again divided into two types. One is called government bill and the another is called private members bill. So what is government bill and what is private members bill? गवर्नमेंट बिल जो होता है वो बिल वो होते हैं जो कि एक मिनिस्टर जिसको प्रपोज करता है, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर्स हैं, अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर उसको प्रपोज करता है तो उसको हम गवर्नमेंट बिल कहते हैं। और जब कोई नॉन मिनिस्टर एक बिल को प्रपोज करता है देन दैट बिल इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर्स बिल। ठीक है, प्राइवेट मेंबर मतलब नॉन मिनिस्टर, गवर्नमेंट बिल मतलब मिनिस्टर्स ने उसको प्रपोज किया है। ठीक है, तो अगेन वी कैन डिस्ट्रीब्यूट और वी कैन क्लासिफाई दिस बिल into two types. The first is government bill. Okay, the first is called government bill and the second is called private members bill. ओके, ये हमारा बिल का क्लासिफिकेशन यही है, दो बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एंड नाउ वी विल सी कि बिल जो है उसका कैसे वो स्टार्ट होता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। तो मेनी टाइम्स जो बिल का लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, ऐसी बात नहीं है कि इट स्टार्ट्स इन पार्लियामेंट ओनली। जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो पार्लियामेंट के बाहर भी स्टार्ट हो सकता है। लाइक जो पीपल हैं, ग्रुप, एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो किसी तरह के बिल को चाहते हैं, है ना, किसी के नॉट बिल, दे वांट सम न्यू लॉ, कुछ उनको लॉ चाहिए,
और उनको सपोर्ट करने वाला कोई पॉलिटिकल पार्टी है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो उस पर्टिकुलर ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, और उस ग्रुप की जो डिमांड है कि लॉ बनना चाहिए इसके रिगार्डिंग, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो वैसे कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट ओनली। ये लोगों की तरफ से इसकी इनिशिएटिव की जा सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, दे कैन start the law making process by mobilizing the people, by representing their interest before the whole nation. So we will continue our discussion in the next class.